Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. The best preparation for tomorrow is to do today's work exceptionally well. And to help you get a better tomorrow in terms of succeeding in your examination, I am here to give you a preparation strategy which will help you perform exceptionally well and get your own desired results. So, without wasting any further time, let's get into the video and see how you can fetch more marks in any of your examinations. Okay, so इस वीडियो में I'll be sharing my strategy which I have been following for a very long time now, and I think कि each time it has proved to be beneficial for me. So the strategy I'm talking about is the 4R and 4P strategy. Super simple if you are ready to put your efforts in. तो चलिए स्वागत करते हैं पहले आर का. It is routine. As rightly said, the secret of your future lies in your daily routine. तो it is very important that you realize कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर मुझे दिन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, मुझे किस टाइम पर एक दिन में किस टाइम पर क्या चीज करनी चाहिए, and ensure that you abide by the routine you set for yourself. So the first R I want to give you is please routinize your routine and make sure कि ये routine वो है जो आपको आपकी goal की तरफ लेकर जाएगा. Okay? So get a routine. Or get a routine से I mean set your own timetable. It's very important. I don't care if you laugh at me, but ये बहुत ज़्यादा important है if you want to manage your time efficiently. Let's get on to the next R. Second recommendation from R is read the resources. And resources as in for CA students specifically modules, RTPs, MTPs, past year papers. इसके अलावा कोई भी resource पर आपको जाने की जरूरत नहीं है. Thoroughly read करो, because I believe in the fact that the number of times you read, it is directly proportional to your ability to retain things. So read, give multiple readings even if you're done with one. Next R is record, and by record I mean take notes. Take notes as people take drugs. इतना addiction बना लो note making को, क्योंकि आप जितनी बार लिखते जाओगे you will realize that you are refining each and every time. And पिछले R में जैसे मैंने कहा था read, let me correct it because reading से ज्यादा retention power होती है writing में. तो when you make notes, you write the content और लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है. मैं यहाँ पर बोल रही हूँ खुद के नोट्स बनाने के बारे में, किसी फैकल्टी के नोट्स है, फ्रेंड्स के आए हुए नोट्स है, वो सब अपनी जगह है. खुद के नोट्स बनाना सीखो. आप इंटर में आओगे या अगर आप अभी भी इंटर में हो तो आप टैक्स की बुक देखो जरा. पॉसिबल नहीं है कि आप वो मॉड्यूल को बार बार पढ़ सकोगे. ट्राई एंड शॉर्टन इट. जो अनवांटेड चीजें है उसको हटाओ साइड में, लेकिन जिन पे क्वेश्चंस बन सकता है आपको लगता है, टेक नोट ऑफ इट सेपरेटली. बनाओ, स्कूल में बनाते थे वैसे नोटबुक्स. आई रेकमेंड इट 100%. एंड सिर्फ लिखना नहीं है. नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग लॉ, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज लिखो लिखो लिखो. और मैं नहीं कह रही हूँ कि बार बार नोट्स को लिखने की जरूरत है या बार बार जब आप पढ़ो तब लिखने की जरूरत है. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप लिखकर बोर हो जाओगे, तो उस टाइम पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ओन वॉइस. कैमरा के सामने जाओ, वहां बोलो, कांच के सामने खड़े रहो, वहां खुद को एक्सप्लेन करो. बिकॉज इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट वेल, you don't understand it well enough. To read, write and deliver to the point that you are capable of explaining it and you are understanding the point thoroughly. अगर आपके यहाँ फिट होगा तो आप पेपर में फिट कर पाओगे, ये बात याद रखना. Fourth R speaks about revision. ट्रस्ट मी, एनी एंड एवरी रिविजन काउंट्स. वो चाहे आपकी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट हुई हो, आप सैटरडे संडे वाले रिविजन्स करते हो वो हो, या वो एग्जाम्स के पहले वाले रिविजन्स हो, ईच एंड एवरी रिविजन काउंट्स. तो प्लीज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज. द मल्टीपल टाइम्स यू रिवाइज, वो उतने ज्यादा आप वो चीजों से कनेक्टेड रहोगे. क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर बहुत टाइम तक आपने वो चीज को रिवाइज नहीं किया है, तो एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि उसको आपको रिवाइज करना है, तो दैट रिविजन टर्न्स इनटू यू फर्स्ट टाइम स्टडीइंग इट. बहुत सी बार ऐसा होता होगा, आई नो, कि आपको लगता है आप इसको रिवाइज करने बैठ रहे हो, लेकिन फिर रियलाइज होता है यार ये तो याद ही नहीं आ रहा. तो ये ना हो, इसीलिए प्लीज कीप रिवाइजिंग रेगुलरली. एंड ये रिविजन होना चाहिए आपके नोट्स से.
आप कहाँ से बार बार पढ़ते हो ये मैटर करता है, क्योंकि वो जहां से आप पढ़ते हो आपको पता होगा शायद, या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा शायद, कि एग्जाम में बैठे बैठे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें एक्सपेक्टेड होता है या जिसके बारे में हमने पढ़ा होता है, तो वो किस पेज पर था, कहाँ लिखा था, वो याद आता है। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको वो याद आ रहा है ना, वो याद आ रहा है अभी रिविजन करते वक्त, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो द 4 hour वर हैव अ रूटीन, read from module, RTPs and MTPs. Record in the form of notes in your own notebooks or voice notes in your mobile phones or videos in whatsoever form you can record. Fourth one was recite and revise as many times as you can. Prepare your own revision schedule. If you want me to give you deadlines and revision schedules, let me know. I'll be happy to help you with that. But as of now, let's move on to the 4 P's I talked about. I agree कि आपका plan है, आपको CA करना है, but plans without planning mean nothing. बोलते हैं ना, if you fail to plan, then you plan to fail. Trust me, ये 100% सच बात है, because an hour of planning can save hours of doing for you. तो इसीलिए plan your day, plan your studies, plan each and everything you do. मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है मेरे दिन का, कि मैं इस पीरियड में ही वीडियो शूट करूंगी, इस पर्टिकुलर पीरियड में ही मैं वीडियोस एडिट करूंगी। आपको अपने पढ़ाई का प्लान बनाना जरूरी है। सेट डेडलाइंस, कि मुझे मई में मेरी एग्जाम है, तो मुझे मार्च एंड तक, फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है या था। आप अगर सीए फाउंडेशन के एग्जाम मई में देने वाले हो, तो रिजल्ट आने तक अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, प्लान द टीचर्स फ्रॉम whom you will be taking the classes. रीच आउट टू योर सीनियर्स, एडवांस में प्लान करके रखो चीजें। अगर आपको लग रहा है आपका क्लियर नहीं होगा, तो प्लान एंड सिट फॉर स्टडी राइट अवे, थोड़ा ब्रेक के बाद ऑब्वियसली। तो ओवरऑल बस इतना बोलना था कि प्लान ऑल दैट यू डू, बिकॉज मैंने ये अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में भी कहा था कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, एंड आई नो कि सीए बनना आपकी विश नहीं है, आपका करियर गोल है। तो इसीलिए हल्के में मत लो और प्लानिंग के साथ काम करो। नेक्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन पी इज प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आई डोंट बिलीव दैट, आई बिलीव परफेक्ट प्रैक्टिस मेक थिंग्स परफेक्ट। तो इसीलिए आप जो प्रैक्टिस करते हो वो कैसी करते हो और कहाँ से करते हो वो भी मैटर करता है। आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड इट एंड आई विल रिकमेंड इट द सेम राइट नाउ एज वेल। आपके रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास्ट पेपर्स होने चाहिए। इफ एट ऑल जरूरत लगती है तो फैकल्टी ने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करो। जनरली वो लोग भी आरटीपी, एमटीपी और मॉड्यूल से ही उठाकर लाते हैं क्वेश्चंस, चाहे नाम और नंबर बदल दे, पर बेस वही होता है। एंड ट्रस्ट मी, 70 to 80% ऑफ आईसीआईएस पेपर इज आउट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेस। तो अगर इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कुछ बनाया है तो वो सोच समझकर बनाया गया है, उस पर भरोसा करो। बहुत लोग बोलते हैं, आई नो, बहुत टीचर्स भी बोलते हैं कि मॉड्यूल कॉम्प्लिकेटेड है एंड ऑल। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप कैसे उनकी बात पे यकीन करने लग रहे हो, मुझे बताओ। ट्रस्ट मी, आज की डेट में मॉड्यूल्स आर मच सिंप्लीफाइड। एक बार थरो रीडिंग दो, आपको समझ आएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट अ हैंड इन दोज। मैं प्रैक्टिस करने इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने सिर्फ देखे थे, इजी है सोचकर, मैंने उनकी प्रैक्टिस नहीं की थी, रिटन एग्जाम में जाके मेरा माइंड उन क्वेश्चंस पर ब्लॉक हो गया। मुझे पता ही नहीं था आंसर शुरू कैसे करना है। आई डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन विद यू ऑल, इसीलिए बोल रही हूँ कि एक टाइप का एक क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, चाहे मल्टीपल मत करो। एक टाइप के अगर आपको लग रहा है आपका हाथ उसमें बैठ चुका है या आप कॉन्फिडेंट हो, आप वैसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे, तब मत करो। लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन एक कैटेगरी का, एक टाइप का करना ही करना। थ्योरी पेपर्स के लिए प्रैक्टिस इन द फॉर्म, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप मल्टीपल रीडिंग्स दो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। मोस्ट प्रोबेबली इनके रिसोर्सेस, जैसे मैंने कहे, आईसीआई के रिसोर्सेस ही रखना। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, देन यू कैन गो ऑन विद स्कैनर्स आल्सो, या प्रैक्टिकल मैनुअल्स, जो भी आप फॉलो करते हो। तो या प्रैक्टिस, ओके। सो ये प्रैक्टिस का ही दूसरा फॉर्म आता है हमारा 3rd P, जो कि आएगा एट द एंड ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन, विच इज पेपर सॉल्विंग। आई सेड इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि आप इसमें पेपर, आप फाइनल कैसे सॉल्व करने वाले हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो।
तो इसीलिए आप जो पेपर सॉल्विंग करोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन योर माइंड कि आप जब आपकी प्लानिंग करोगे तो आप उसमें 1 महीने का 1.5 महीने का स्लॉट पेपर सॉल्विंग के लिए रखोगे एट द एंड। और ये पेपर सॉल्विंग प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लगाकर स्टडी टेबल पर बैठकर खुद को उस माहौल की आदत दिलाओ। एग्जाम एनवायरनमेंट में अगर आप पेपर सॉल्विंग करोगे तो वो आपके फायदे का रहेगा। जब खुद को मार्क्स दोगे, अगर आप बाहर से किसी टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर खुद से मार्क्स देने वाले हो तो बी कंजर्वेटिव व्हाइल यू गिव मार्क्स। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वीक लग रहा है तो थोड़ा लिबरेट होकर भी मार्क्स दो, बिकॉज आप पेपर दे रहे हो इन अ वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बट ऑल्सो एज अ रियलिटी चेक कि आपको अभी भी किस किस पॉइंट्स पर मेहनत करने की जरूरत है। तो या पेपर सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट। पीपल आस्क्ड मी कि आपने पेपर सॉल्व किए थे क्या। मैंने फाउंडेशन में हर सब्जेक्ट के 8-8 पेपर सॉल्व किए थे। मैंने इंटर में टोटल 32 या 35 पेपर्स खुद सॉल्व किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जब आईसीआई के पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको ये रियलाइज होगा एग्जाम में कि कम से कम एक क्वेश्चन तो उन पेपर्स में से बनकर आता ही है। तो पेपर सॉल्विंग के इंपॉर्टेंस को कभी भी अंडरमाइन मत करना। और इसी पेपर सॉल्विंग से होता हुआ जाता है हमारा 4th P, जो है प्रेजेंटेशन। सीए के कोर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि वी पीपल अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप एक बात सोचो कि एग्जामिनर 100 बच्चों के पेपर्स चेक कर रहा है, अगर उसको हर पेपर में कुछ ना कुछ उटपटांग दिख रहा है तो उसको क्या मजा आएगा पेपर चेक करने में। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पेपर वो 100 पेपर्स से थोड़ा हटके हो, ऐसे तरीके में हो कि कम से कम एग्जामिनर को ब्रेक मिले, उसको जो चाहिए वो पॉइंट उसको खुला दिखे। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में आता है बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स लिखना जहां जरूरत है वहां, अंडरलाइनिंग करना जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो। अब आई नो कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इतना टाइम मिले, लेकिन अगर आप जो पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें मैनेज करना सीख लो तो ट्रस्ट मी, एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। द मोर प्रेजेंटेबल योर पेपर लुक्स, द मोर हैप्पी द एग्जामिनर विल बी। और अगर उसे लगता है कि आपने थोड़े एफर्ट्स डाले हैं उसका भी काम आसान करने के लिए, तो भगवान की दया से थोड़ा तो वो मेहरबान हो ही जाएगा। मानने में क्या जाता है, मान तो लो, होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय स्ट्रेटजी। इसके साथ सिर्फ एक बात बोलूंगी कि जब आप आपकी क्लासेस करते हो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करना मत भूलो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने यही गलती करी थी कि दिन में 10-10 12-12 घंटे क्लासेस कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी को पूरा सिर्फ सैटरडे संडे के लिए रख रहे। प्लीज बिलीव मी, सैटरडेज और संडेज सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम करने के लिए नहीं होते, रिविजन करने के लिए होते हैं। तो क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी करो। 10-10 घंटे क्लासेस करने आप रोबोट नहीं हो। जितनी क्लासेस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका खुद से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, गिव योर 100% टू अटेम्प्ट 100% ऑफ योर पेपर। 100 मार्क का पेपर लिखकर आओगे, जब आपको 40 की उम्मीद होती है तब जाकर आप 50 तक पहुंच पाओगे। अरे पूरा पेपर तो लिखो, एग्जामिनर को मौका तो दो कि वो आप पे थोड़ा मेहरबान हो सके अगर आप फेल होने के कगार पे हो तो इसीलिए try your best and attempt 100% of your paper. I hope you found my tips useful and you will work on it. Trust me, determination और planning के साथ आप intelligent लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हो। Believe in yourself. You were born to win, but to win, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. I'll also be coming up with subject wise strategy, पर इस वीडियो में यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much everyone. Signing off.